Hello everyone. Let's start with the new topic Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules thereunder 1945. So this is the biggest topic from the subject pharmaceutical jurisprudence that we call in abbreviation D&C Act 1940 or D&C 1940. So in this video we are going to focus on the introduction of this act. We will see objectives and schedules with the mnemonics. That is our focus. Let's start with the topic Drug and Cosmetic Act. So one by one through the series of video we are going to cover the introductory aspects of act, objectives of act, schedules to the act and rules, what are different schedules and definitions, then administrative bodies which are counseling to the government, provisions related to the import, manufacture, sale and distribution of drugs, cosmetics, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, होम्योपैथिक मेडिसिन, इन सब के लिए जो प्रोविजंस है वो हम देखने वाले हैं. At last we are going to see offences and penalties as per Drug and Cosmetic Act. So after watching this video you will be able to know about the introductory aspects of Drug and Cosmetic Act, objectives of Drug and Cosmetic Act and schedules with mnemonics. So let's start with the introduction. We know we have seen Drug and Cosmetic Act came and was established in 1940 and some rules were attached on 1945. That's why the name of our topic is Drug and Cosmetic Act 1940 and rules 1945. But how it came into existence? So we have seen in topic number 1 there was a establishment of Drug Enquiry Committee in 1931. So Drug Enquiry Committee had given about 90 recommendations. इस DEC ने DEC ने लगभग 90 recommendations दिए थे. उनमें से recommendations ये भी थे कि there should be legislation, there should be a separate provision to import, manufacture, sale and distribution of drugs. So that was one recommendation by Drug Enquiry Committee. We have seen the government was reluctant at that time. The British government was reluctant to implement these recommendations. Public pressure to the government and to make the public satisfied, government passed Import of Drug Bill in 1937. But the indicating name is Import of Drug Bill. That means this act was only associated with, only concerned with the import of drugs, not about manufacture, sale and distribution. So again this question was left untouched. ये भी बाकी रहता है कि इसका कंट्रोल कौन करेगा. So finally to control the import, manufacture, distribution and sale of not only drugs but also cosmetics, Drug and Cosmetic Act was passed on that 10th April 1940 by the Indian legislature. So उस वक्त के ब्रिटिश अंडर भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय लेजिस्लेशन ने 10 अप्रैल 1940 को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास किया जो कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को कंट्रोल करेगा, ना कि ड्रग्स को बल्कि कॉस्मेटिक्स को भी करेगा. ये एक्ट बना 40 में, इसके रूल्स जोड़े गए 45 में, लेकिन ये अमेंड होता चला गया. अमेंड मीन्स इट वाज कंटिन्यूअसली अपडेटेड एंड रिपेयर्ड. So it was first time amended in 1955 followed by 1960, 62, 64, 72, 82, 86, 95, 2008, 2011, 17, 2019. So जब भी ज़रूरत पड़े from time to time the act is updated, act is amended accordingly as per the situation and need of time. So now see what is about the constitution of this act. As like pharmacy act, जैसे pharmacy act में 5 चैप्टर थे, D&C में भी 5 चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़े हैं as compared to pharmacy act. फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ D&C एक्ट एंड शेड्यूल्स देखेंगे. ये रहा इंट्रोडक्टरी टॉपिक. सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जिसमें हम ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ऐसे कंसल्टेटिव कमेटीज एडमिनिस्ट्रेशन के देखेंगे. एग्जीक्यूटिव कमेटीज देखेंगे. लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी, ये सब किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली ये बॉडीज है. चैप्टर 3 कंटेन्स इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. सो वी विल सी ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंपोर्ट.
चैप्टर 4 कंटेन्स मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। 4A में क्या है? ऑल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। चैप्टर 5 क्या है? मिसलेनियस है। सो ये है पूरा कंटेंट कि ये 1 बाय 1 हम वीडियो के सीरीज से ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन चैप्टर 1 दैट इज द इंट्रोडक्टरी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर 2 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, क्वेश्चन रहता ही है ये ऑब्जेक्टिव्स का। ओनली 1.5 स्टेटमेंट है, 1.5 सेंटेंस है ये। To regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics. So आपके टॉपिक का नाम क्या है? D&C Act. So किसका हमें कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है? ये तो हमें पता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। क्या करना है? इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये रहे ऑब्जेक्टिव्स। ये हम इसका एब्रिविएशन भी रख सकते हैं ध्यान में। IMDS कर सकते हैं, MIDS कर सकते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगे एब्रिविएशन के हिसाब से हम याद रख सकते हैं। नाउ शेड्यूल्स टू द एक्ट। देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट। D&C एक्ट 1940 है और रूल्स 1945 है। सो एक्ट के लिए 2 शेड्यूल्स है और रूल्स के लिए लगभग 25 शेड्यूल्स है। सो फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट। एक्ट के लिए क्या बोला? 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। सो व्हाट इज फर्स्ट शेड्यूल? इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये फर्स्ट शेड्यूल क्या देता है हमें? सी दिस पिक्चर इंडिकेट्स, इट गिव्स द लिस्ट ऑफ बुक्स वेर स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये है फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल टू द एक्ट, हम इसको ध्यान में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? SSS के या फिर S³ रिमाइंड कर सकते हैं। S³ मतलब S फॉर सेकेंड, S फॉर शेड्यूल, S फॉर स्टैंडर्ड। सो इट प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड विथ। ये क्या कहता है? स्टैंडर्ड्स देता है जो कि कंप्लाई होने चाहिए, मैच होने चाहिए विथ बाय imported drugs and by the drugs manufactured for sale, sold, stocked or exhibited for sale or distributed. ये सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है कि स्टैंडर्ड्स देता है ये कि जो भी इंपोर्टेड या फिर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स है, इनका स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। तो ये है स्टैंडर्ड्स इन सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नाउ वी विल टर्न टू द schedules to the rules. Now alphabetically from A to letter Y ये schedules है जो हम 1 by 1 देखने वाले हैं। हम इसके ट्रिक्स भी देखेंगे। We will see what are the mnemonics and what are the tricks to remember, to remind the schedules, because as per the examination is concerned, as per any competitive examination is concerned or GPAT is concerned, everywhere if you are going to appear for examination related to pharmaceutical sciences, schedules will be there. At least 2-3 schedules will be there, and that's why it is difficult to remember as such. So here we will discuss some tricks and mnemonics how to remember the schedule. So it will be easy. Schedule first, that is the schedule A. Schedules to the rules कितने हैं? 25 है। Schedules to the act कितने हैं? 2 है। कौन से है? फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। शेड्यूल्स टू द रूल्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं शेड्यूल A. सो सी पिक्चर, साइड में पिक्चर भी डिस्प्ले किया है जो कि हमें कुछ तो आइडिया देगा, इंडिकेशन देगा। शेड्यूल A क्या है? लिस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस। ये ऐसे फॉर्म्स की लिस्ट है। शेड्यूल A में सब फॉर्म्स दिए हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस, फॉर इशूइंग लाइसेंस, ग्रांटिंग लाइसेंस एंड सेंडिंग मेमोरेंडम। ये जो फॉर्म्स की लिस्ट है वो किसके लिए यूज की जाती है? कौन से कामों के लिए यूज की जा सकती है? एप्लीकेशंस बनाने के लिए, लाइसेंस इशू कराने के लिए, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए मतलब देने के लिए, या फिर उसको अप्रूव करने के लिए, सेंडिंग मेमोरेंडम कुछ रिमाइंडर वगैरह भेजने के लिए। जो भी फॉर्म्स यूज किए जाते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर, वो सारे फॉर्म्स की एक लिस्ट है जो कि शेड्यूल A है। किसमें दी है? ये शेड्यूल A में दी है। सो हम याद कैसे कर सकते हैं? A फॉर एप्लीकेशन। सो
शेड्यूल ए में क्या है, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन किस लिए किए जाते हैं, इशू लाइसेंस, ग्रांट लाइसेंस एंड सेंडिंग मेमोरेंडम। सो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नाउ शेड्यूल बी, ये क्या है शेड्यूल बी, इट इज फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो टेस्ट और एनालिसिस कौन करता है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी करती है या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट इन सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी करते हैं। सो उसके लिए वो टेस्ट या एनालिसिस करने के लिए जो भी फीस है, जो भी मनी पे करना पड़ता है, वो कौन से टेस्ट के लिए क्या फीस है, ये किस शेड्यूल में दिया है, शेड्यूल बी में दिया है। सो ये देखिए, इसके लिए इमेजिनरी इमेज है। सो हम देखेंगे अब शेड्यूल बी कैसे याद रखेंगे। हमें तो एब्रीविएशन पता है, यूनिवर्सल एब्रीविएशन है बीएफ, बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड कहते हैं हम इसे। तो अब हम ये शेड्यूल बीएफ कैसे याद रखेंगे, हमारे लिए कैसे यूज करेंगे, बी फॉर बी शेड्यूल एंड एफ फॉर फीस। सो हम बी अगर याद करेंगे शेड्यूल बी तो हम रखेंगे याद में बीएफ, बीएफ, बीएफ मतलब शेड्यूल बी एंड एफ फॉर फीस। सो ये क्या है, फीस फॉर। अब हमें आगे का भी याद रखना है। सो अनदर वे टू रिमेंबर इज जस्ट कीप इन माइंड बेटा या फिर बीटा, प्रोनाउंस बीटा, BTA, बीटा। सो B for schedule B, T for test, A for analysis. ओके, सो BF बीटा ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि शेड्यूल B किसके लिए है, फीस है। किसकी कैसी फीस है, टेस्ट और एनालिसिस, और टेस्ट एनालिसिस कौन करता है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिसिस। सो BF बीटा, ये है रिमेम्बरिंग ट्रिक्स। नेक्स्ट शेड्यूल C। सो शेड्यूल C क्या है, biological and special products, and schedule C1 other special products. So CBS कह सकते हैं हम, सेंट्रल बस स्टैंड कहते हैं उसे, CBS सेंट्रल बस स्टैंड। सो इसके अनुसार हम क्या याद रख सकते हैं, C फॉर शेड्यूल C, B फॉर बायोलॉजिकल एंड अगेन S फॉर स्पेशल प्रोडक्ट। सो शेड्यूल सी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। C1 क्या है, आप इतना एक सेंटेंस करें तो भी ठीक है, अदर स्पेशल प्रोडक्ट, दैट इज OSP, ये अदर स्पेशल प्रोडक्ट। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए शेड्यूल C जो है इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज सी मतलब हम सी, देखिए सी सागर या फिर हमें समुंदर कहते हैं, और ये सी भी है अल्फाबेटिकल सी, तो ये हम थोड़े गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं सी। सो सी, ये सागर जो है ना, समुंदर जो है वो क्या इसमें क्या रहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब मरीन प्रोडक्ट्स रहते हैं, फिश, अलगी, फंगाई और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ओके, सो इसकी वजह से हम सी याद रखेंगे कि इसमें क्या आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आता है। ओके, या फिर हम एक छोटा एब्रिविएशन है CBS, दैट इज द सेंट्रल बस स्टैंड। तो ये भी याद कर सकते हैं। अब हमें C और C1 में डिफरेंशिएट करना है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क के लिए शेड्यूल C के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं या फिर C1 के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं और आपको शेड्यूल पहचानना होता है। तो एक ट्रिक है या फिर एक आइडिया है कि ये कैसे याद रखें। सो शेड्यूल C कंटेन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर्ड इन पेरेंटल फॉर्म। जो C में आते हैं एग्जाम्पल्स ड्रग्स के, मेडिसिन के, वो पेरेंटल फॉर्म में दिए जाते हैं, और जो C1 में आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दे आर एडमिनिस्टर्ड नॉट इन पेरेंटल फॉर्म, मतलब पेरेंटल छोड़ के कई और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये C1 के प्रोडक्ट या C1 के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सो C by parental and C1 not by parental form। ओके, ये हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये रहे टेक्निक टू रिमेंबर शेड्यूल C and C1। नाउ द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल D। सो देखिए ये इमेज कहती है हुर्रे, आई एम फ्री नाउ, है ना, एग्जाम हो गई, नाउ आई एम फ्री। सो शेड्यूल डी ये क्यों इमेज डाली है, इट कंटेन्स द क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स। एग्जेम्प्टेड मतलब ऐसे जिन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जिन्हें कुछ सहूलियत दी गई है, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड ड्रग्स। सो शेड्यूल डी इज क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। सो क्या है शेड्यूल डी, एग्जेम्प्टेड ड्रग्स है इसमें कि जो कि एग्जेम्प्टेड है कई सर्टन प्रोविजंस में से एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स।
how to remember schedule D? It is can be remembered by one trick. Just keep in mind our Indian cricket player Dinesh Karthik, DK. So what does it mean? How it is correlated? So schedule D and schedule K both are having similarities, only the difference is it is applicable, schedule D applicable for import and schedule K applicable for manufacture of drug. Remaining things are same, class of exempted drugs which are exempted from certain provisions. So ये क्या indicate करता है? इन्हें सहूलियत दी है, इन्हें कुछ relaxation दिया गया है from certain provisions applicable to import. So हम कैसे याद रखेंगे अब schedule D? डाई तो हमें पता है, DIE डाई मतलब कि मर जाना, डेथ होना. ओके, सो D फॉर शेड्यूल D, I फॉर इम्पोर्ट एंड E फॉर एग्जेम्प्टेड. अगर ये तीनों याद रखते हैं तो हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. क्लास ऑफ exempted drugs which are exempted from certain provisions applicable to import of drug. So शेड्यूल D डाई से याद रखेंगे और D के हमें याद रखना है ताकि हम शेड्यूल के में ये हमारे लिए इजी हो जाए. नाउ नेक्स्ट शेड्यूल E. So क्या है शेड्यूल E? List of poisonous substances omitted. Actually this schedule is omitted in 82. Now E1 is there, list of Ayurvedic, Siddha and Unani poisonous substances. So E और E1 हम याद रख सकते हैं. E1 आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए है, बट E पॉइजनस के लिए ये कैसे याद रखेंगे? तो हमें पता है स्पेशली लेडीज डिपार्टमेंट वेन एवर दे कम अक्रॉस एनी डेंजर लाइक चिपकली या लाइक बिल्ली, तो झट से या फिर किसी डर्टी मैटर से हम झट से क्या कहते हैं? ई. सो ई मतलब कि डेंजरस, ई मतलब पॉइजनस. ओके, सो इसके अनुसार हम याद रखेंगे शेड्यूल ई इज लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, इवन फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी. नेक्स्ट शेड्यूल एफ. सो ये कुछ इमेजेस है. शेड्यूल एफ, F1, F2, F3, डबल एफ, ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्स है एफ में. पहला वाला देखेंगे हम. शेड्यूल एफ, इट इज द प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट्स. ये किससे रिलेटेड है प्रोविजन? ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट. ब्लड बैंक में जो ब्लड कंपोनेंट्स प्रोसेस होते हैं लाइक प्लाज्मा, लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनका जो प्रोसेसिंग होता है इसका लाइसेंस लगता है. सो उसके लिए जो प्रोविजन और ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट जो रहता है, ब्लड बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है, ये सब किस में आएगा? शेड्यूल एफ में आएगा. तो हमें याद में क्या रखना है? ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट. आगे का तो हम जोड़ सकते हैं लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट. तो कैसे याद रखेंगे आगे हम देखेंगे. पहले शेड्यूल्स देखते हैं. F1. F1 क्या है? प्रोविजन एप्लीकेबल टू वैक्सीन्स, एंटीसेरा एंड diagnostic agent. C. So this is the picture associated. F2 क्या है? Standards for surgical dressings. Okay. F3 क्या है? Standards for umbilical taps. And double F, standards for ophthalmic preparations. ऐसे preparations which are used installation into eyes. आँखों के इलाज के लिए यूज किए जाने वाले ophthalmic preparations. So these are schedule F. F1, F2, F3 एंड डबल एफ. ये ध्यान में रखने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज करने हैं. सो हम देखते हैं. पहला वाला है शेड्यूल एफ. सो एफ को हमें एफ भी पता है, फेसबुक जिसे हम एफ भी कहते हैं. ओके, सो कैसे याद रखेंगे? एफ फॉर शेड्यूल एफ और बी फॉर ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट. क्या है शेड्यूल एफ? इट इज द रिक्वायरमेंट, ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग फॉर प्रोसेसिंग ब्लड कंपोनेंट. सो शेड्यूल एफ याद रखने के लिए हम एफ भी याद रखेंगे. अब F1 देखिए, एफ भी फेसबुक पर दो लोग मिलते हैं. दो लोग, हम यहाँ पे दो लोग अपोजिट जेंडर लेंगे या कि लड़का या लड़की मिलते हैं. फेसबुक पर उनकी फ्रेंडशिप होती है या फिर फेसबुक पर वो जान पहचानने लगते हैं. ये शुरुआत हो गई. ठीक है. अब F1 में हम क्या देखने वाले हैं? हमें याद रखना है वादा. वादा ये हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश में हम जिसे प्रॉमिस कहते हैं. ओके, सो ये वादा क्या है? V फॉर वैक्सीन, ओके, A फॉर एंटीसेरा एंड DA फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट. सो शेड्यूल F1 क्या है? देखिए, F1 है प्रोविजन एप्लीकेबल टू वैक्सीन्स, एंटीसेरा एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन. सो ये याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? वादा. सो पहले शेड्यूल एफ में फेसबुक पर मिले हम,
शेड्यूल F1 में हमने वादा किया, मतलब इन दो लोगों ने क्या किया, प्रॉमिस किया, कमिट किया, वादा किया. सो प्रोविजन एप्लीकेबल टू V फॉर वैक्सीन, A फॉर एंटीसेरा, DA फॉर डायग्नोस्टिक एंटीजन. अब देखते हैं इनका आगे क्या होता है F2 में. F2 में SD याद रखेंगे हम. ये SD हम स्टैंडर्ड एविएशन के नाम से याद रख सकते हैं. आज का कोविड-19 का जो सिचुएशन है कोरोना का, इसके हिसाब से हम SD सोशल डिस्टेंसिंग करके भी याद रख सकते हैं. लेकिन हमें शेड्यूल का आंसर लिखने में क्या है, इसकी मदद लेनी है. शेड्यूल F2 क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, C है ना, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. तो हम F2 कैसे याद रखेंगे, SD. अब ये जो कमिटेड है FB पे और वादा, इसका कंटिन्यूएशन हम कैसे स्टोरी बनाएंगे हम शेड्यूल F की. तो स्टोरी का अगला पार्ट क्या है, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखने लगे. क्यों, क्योंकि अब दोस्ती हो गई, कमिट भी किया, अब क्या हुआ, थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ गया और इसकी वजह से वो डिस्टेंसिंग रखने लगे. मतलब अब बात ठीक से नहीं करते, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, गैप रखते हैं. सो ये हो गया. इसके आगे क्या होगा, ऑब्वियसली ये रिलेशन टूटेगा, ब्रेकअप होगा. सो शेड्यूल F3 क्या है, SUT मराठी वर्ड है सूट. सूट का मतलब मराठी में सूट वर्ड का मतलब है चले जा या फिर गो अवे, गो टू हेल, ऐसा है. सो F3 में हम क्या याद रखेंगे, SUT सूट, S फॉर स्टैंडर्ड्स, U फॉर अम्बिलिकल, T फॉर टेप्स. सो अब क्या हुआ, डिस्टेंसिंग बढ़ता गया और अब एक दूसरे को क्या बताया गया, गो अवे, सूट. अब ये मराठी वर्ड है, थोड़ा ये यूजफुल है याद रखने के लिए. ये रहा शेड्यूल F. अब हम डबल F शेड्यूल कैसे याद रखेंगे, F1 F3 से हमें पता है क्या है. फर्स्ट शेड्यूल F में हम FB पे मिले, रिलेशनशिप में एंटर हुए, कमिट किया F1 में. F2 में थोड़ा कन्फ्लिक्ट आया तो थोड़े दूर गए, F3 में पूरे दूर गए, पूरा ब्रेकअप हो गया. सो F1 के लिए वादा, वैक्सीन, एंटीसेरा, डायग्नोस्टिक एंटीजन. तो डिस्टेंस रखने लगे, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो F2 में क्या, स्टैंडर्ड SD सोशल डिस्टेंसिंग, सो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. फाइनली ब्रेकअप हुआ, सो गो टू हेल बोला एक दूसरे को. अरे इसके लिए SUT सूट ध्यान में रखेंगे. तो ये है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप. ये पूरी स्टोरी हो गई. अब क्या हुआ, शेड्यूल FF रह गया. अब यादें हैं, यादों के साथ हमें क्या करना है, जीना भी है, और याद आती है तो फिर रोते भी है. सो रोते हैं मतलब आंखें हैं. सो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ये 2 F भी हम याद रख सकते हैं, जिनमें क्या हमें इंडिकेट किया है, आंखें इंडिकेट की है. सो एक इनके लिए है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ऑप्थेल्मिक किसके लिए यूज किया जाता है, आंखों के इलाज के लिए जो भी प्रिपरेशन है उसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं. सो ऐसे एक स्टोरी हम याद रखेंगे ताकि हमें अगर शेड्यूल F सीरीज में F पूछा जाता है, F1 F2 F3 या डबल F कुछ भी पूछा जाए तो हम ये स्टोरी याद करेंगे और इससे हमारा शेड्यूल हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर आंसर दे सकते हैं. ठीक है, अगले स्टोरी पे चलेंगे हम. नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल G. सो शेड्यूल G, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, सो ये कैसे ध्यान रखें हम, G शेड्यूल G है ना, हम हिंदी में जी साहब, जी मैम ऐसे बोलते हैं, तो रिस्पेक्टली बोलते हैं हम. ओके, जिन्हें हम मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर हमारे हायर अथॉरिटी है तो बोलते हैं. वी रिस्पेक्ट फिजिशियन, हम डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हें गॉड बोलते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप या फिर भगवान ही कहते हैं. सो हमें क्या करना है, जी शेड्यूल में जी करना है, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिस्पेक्ट देनी है. ओके, सो इसके लिंक से हम याद रखेंगे, इट इज द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस required to be taken only under supervision of RMP, that is registered medical practitioner. उनसे पूछे बगैर हम कुछ भी मेडिसिन नहीं लेंगे, मतलब उन्हें वो हम रिस्पेक्ट देते हैं. नेक्स्ट शेड्यूल H. these are prescription drugs which are required to be sold. ये टुकड़ों में, किश्तों में हम याद रखेंगे, which are required to be sold by retail ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो किश्तों में कैसे याद रखेंगे, पहला किश्ता प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, सेकेंड रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, थर्ड बाय रिटेल, फोर्थ ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, फिफ्थ बाय RMP.
हम याद कैसे रखें, ये ऐसे ड्रग्स है कि मेडिकल में फार्मासिस्ट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट को नहीं देने चाहिए। ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जो शेड्यूल एच में आती है। सी, ये अगर प्रिस्क्रिप्शन है तभी ड्रग मिलेंगे, मेडिसिन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये शेड्यूल एच की लिस्ट है। कैसे याद रखेंगे आगे देखेंगे। H1 भी है एक्चुअली, जो सिलेबस में अभी नहीं दिया है लेकिन ऐड किया है मैंने। द शेड्यूल कंटेन्स सर्टन 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स, certain habit forming drugs and anti-tubercular drugs. So schedule H1 में 293 ड्रग्स है H1 में अलग से निकाले गए हैं, जिनमें 3rd और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स है और कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है जो कि H1 में अलग आते हैं। ओके, हम याद कैसे रखेंगे। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप रहता है, हमें याद है ये पॉपुलर ब्रांड है। सो शेड्यूल HP कैसे याद रखेंगे हम, H फॉर शेड्यूल H एंड P फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। आगे का हमें याद रखना है, किस्तों में हम याद रखेंगे। सो दैट वाज शेड्यूल एच। नेक्स्ट शेड्यूल आई। सो आई क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉइजन्स इन सर्टन केसेस। एक्चुअली ये शेड्यूल ओमिटेड है, निकाला गया है, फिर भी अगर हमें पूछा जाए या फिर हमें पता होना चाहिए ये क्या है। कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉइजन्स इन सर्टन केसेस। कुछ मेडिसिनल प्रिपरेशन में पॉइजन भी यूज किए जाते हैं लेकिन वो बहुत छोटी मात्रा में यूज किए जाते हैं, उसका प्रपोर्शन क्या है, इसका कैलकुलेशन हमें आई में मिलेगा। सो याद कैसे रखेंगे, आईसीपीपी इंडियन काउंसिल याद रखेंगे हम, आईसी हमें पता है ना। ओके, सो कैसे याद रखेंगे, आईसीपीपी मतलब आई फॉर शेड्यूल आई, सी फॉर कैलकुलेशन, पीपी फॉर प्रपोर्शन ऑफ पॉइजन। सो हम ये आईसीपीपी के नाम से शेड्यूल आई याद कर सकते हैं। नाउ शेड्यूल जे, इट्स लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। मतलब कि इस शेड्यूल में ऐसी लिस्ट दी है डिसीजेस की, मतलब जो भी हमें व्याधि बोलते हैं ना, या फिर हम बोलते हैं कि बीमारी। सो बीमारियों की ऐसी लिस्ट दी है कि जिनमें से किसी भी बीमारी को कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि इस ड्रग से ये बीमारी पूरी तरह से क्योर हो सकती है या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे डिसीजेस है जो कि नहीं कवर हो सकते, क्योर नहीं हो सकते। सो ये शेड्यूल जे है। हम याद कैसे रखेंगे, आप जेडी, ये डॉन था कुछ तो पुरानी हिंदी फिल्म में जेडी, या फिर डीजे के नाम से याद रख सकते हैं। डीजे तो हमें पता है, डॉल्बी हम सबको अच्छा लगता है फेस्टिवल के दौरान। सो जेडी या फिर डीजे। सो जेडी अगर याद करते हैं तो जे फॉर शेड्यूल जे एंड डी फॉर डिसीजेस। ओके, सो हमें और भी कुछ याद रखना है। जेडी में दाल है ना, हिंदी वर्ड है दाल, सीरियल्स के लिए बोलते हैं हमें दाल चावल में का दाल। सो ये कैसे याद रखेंगे हम, डी फॉर डिसीजेस, ए फॉर एलिमेंट्स, एल फॉर लिस्ट। सो जेडी डाल। ओके, सो या फिर जिंदाल के नाम से भी हम थोड़ा याद रख सकते हैं। सो ये लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स है विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। ऐसे कुछ एब्रीविएशन हम याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज शेड्यूल के। हमें पता है, हमने अभी रिवाइज किया है। शेड्यूल के किसके साथ है, डी के, दिनेश कार्तिक। ये डी के शेड्यूल याद रखना है। डी में प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट है और के में प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग है। ओके, तो अल्फाबेटिकल हम ये कैसे तय करेंगे अगर कंफ्यूजन है कि डी में क्या और के में क्या, इंपोर्ट कहाँ और मैन्युफैक्चर कहाँ। तो डी और के में से पहला अल्फाबेटिकल कौन है, डी है। और इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर में पहला अल्फाबेटिकल क्या है, आई है, इंपोर्ट है। सो पहले को पहले वाले से जोड़ना है, मतलब डी को पहला देना है दैट इज इंपोर्ट, और के को देना है बाद वाला दैट इज मैन्युफैक्चर। सो list of drugs, class of drugs exempted from certain provision applicable to import of drug is schedule D and applicable to manufacture of drug is schedule K. Okay, now next schedule L. LL ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, है ना, L for list. So list of drugs to be sold on prescription only. इतना सिंपल शेड्यूल है जो कि omitted है क्योंकि अब बहुत सारे रिवाइज शेड्यूल आए हैं। सो शेड्यूल एल क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। हम याद करने के लिए ये भी रख सकते हैं, एल डी लीथाल डोज हमें पता है फार्माकोलॉजी में। सो एल फॉर लिस्ट एंड डी फॉर ड्रग्स। सो शेड्यूल एल, एल डी, एल फॉर लिस्ट, डी फॉर ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। ऐसे हम बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके याद रख सकते हैं।
Thank you so much. Up till now we have seen schedules to the rules from A to L. In next video we will be discussing from schedule M to last schedule, that is the schedule Y. Thank you so much for watching the video.